Okay, so in the last lecture, we saw capacitance of a capacitor in absence of dielectric. मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक कैपेसिटर लिया था। इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज था एक प्लेट पे और इंसुलेटेड प्लेट पे, और सेकंड प्लेट विच वाज ग्राउंडेड, इस पे एक नेगेटिव चार्ज था। एंड देन the distance between these two plates was d, and we have proved that capacitance in this case is given by a epsilon 0 by d, right? So this is what we have done in the last session. Ab we are going to do something interesting. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कैपेसिटर लेंगे. बाय द वे, लेट मी जस्ट गिव टाइटल टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. So it is important to put heading. So in today's session, we want to know, we would like to know that how does the capacitance vary अगर मैंने इसी कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो. याद करो, लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल था लाइक एयर और ग्लास. नाउ वी आर फिलिंग द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने वाले हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो वी वांट टू सी what will be the capacitance. Why I am not able, okay, because of the color. Yeah, so we are going to see what will be the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab between the plates. Okay, so this is what we are going to see. Yes. Okay, so I'll first explain you and then we will repeat and also make notes of it. So the idea is pretty simple. हमारे पास एक कैपेसिटर है, and you know what is a capacitor? It is basically two parallel plates separated by some distance d. Okay, so these two plates are separated by some distance d. Now what happens if I keep a dielectric slab in between these two plates? Okay, तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया इस दो प्लेट्स में. आई जस्ट मेक सम मोर स्पेस बिटवीन दीज टू, more or less like this. Yes, good and good. Okay, right. तो सबसे पहले what will happen? We already know, हमें क्या पता है कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज करेगा. और हमने ऑलरेडी देखा है when you keep a dielectric slab in external field, so this is external field, so the electric field of the plates of the capacitor is going from positive to negative. So this red arrow indicates that this is the electric field E0 of, so we have this electric field E0 when there was no dielectric, मतलब जो कैपेसिटर का प्लेट्स है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये.
करेक्ट. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, हमने ये देखा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो दो प्लेट्स के बीच में आ गया और ये जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आ गया. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? पोलराइज होता है. पोलराइज होने का मतलब क्या होता है? दैट there will be negative charges induced on this surface and there will be positive charges induced on this surface, and these are called as polarization charges, right? So let us say this is minus qp, this is plus qp, polarization charges. So charges, induced charges due to polarization, right? अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन एक इंटरनल फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक जनरेट हो गया, right? Let us denote that electric field by EP bar because it's electric field due to polarized charges, correct? Right? If I say, let us assume ये जो thickness है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ये हम मान लेते हैं this is T, and the thickness, the distance between the two plates for capacitor was D, and obviously obviously ये प्लेट हमने ग्राउंड करके रखा है. So this plate is grounded, of course. Okay, this is of course grounded. Correct. Okay, so what we want to see here is देखो जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हमको ऑलरेडी पता है कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D. ये हमने प्रीवियस सेशन में डिराइव किया था, दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ without dielectric was A epsilon 0 by D, correct? Right? हमको ये भी पता है the potential difference between the plates V0 is equal to E0 into D, right? Where E0 is, हमको ये भी पता है गॉस लॉ जब हमने डिराइव किया था, by the way, और हमने रिसेंटली, वेरी रिसेंटली वी सॉ, लास्ट लेक्चर में ही देखा कि व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना? आउटसाइड रीजन में यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ड्यू टू द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बट इन बिटवीन द टू प्लेट्स ये जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है, ये हमने लास्ट सेशन में ही डिराइव किया था, एंड वी गेट अ इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा बाई epsilon 0. And what is sigma? Sigma was charge per unit area, epsilon 0, right? Okay, then now what we are doing is, हम लोगों ने अब एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो गया क्योंकि यहाँ पे द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था. इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा है, दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पोलराइज करता है. पोलराइज करता है किसको? डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को. And we have already learned this. The negative charge will be attracted towards the positive plate and positive charges will be attracted towards the negative plate. इसके वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जिसको हम लोग EP बोल रहे हैं. इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस एंड दैट इज गिवन बाय सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 बाय द सेम फॉर्मूला. सिर्फ ये सिग्मा P जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पे because of the polarization charges upon epsilon 0. The sigma p क्या आएगा आपका? polarization charges, charge upon area, correct? Good, right? So what is the net electric field? The net field inside the dielectric की बात चल रही है. देखो डाइलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल फील्ड में है और डाइलेक्ट्रिक ने खुद का भी इंटरनल फील्ड जनरेट कर दिया, तो नेट फील्ड E will be external field minus the induced field due to polarization. सब्ट्रैक्शन कर देंगे.
दिस टर्न्स आउट टू बी, ये आता है E0 by k. Why? Because it is, because we have a formula, because external field E is always equal to E0 by k. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, either you can say that or you can also say that this is a general formula. Okay, तो नेट फील्ड हमें याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड E in presence of dielectric is equal to field without dielectric upon dielectric constant. मैं वापस समझा देता हूं, ऐसा है that मेरे पास अगर दो कैपेसिटर थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी E लेटेस्ट से, राइट, मतलब इस केस में E इक्वल टू E0 होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ये डालने से क्या हुआ, फील्ड, इफेक्टिव फील्ड, नेट फील्ड इज रिड्यूस्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक E which was electric field without dielectric is equal to E0 by k, ऐसा आता है वो। So that is a general formula, so you should know this. Okay, so it is simple. So if you know this, of course where k is constant, dielectric constant, then what we can do is, okay, हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हमको मिल गया E इज इक्वल टू E0 by k, और E0 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 k, करेक्ट, राइट, आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी वर लुकिंग फॉर, और व्हाट आई कैन से इज Q इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 k इनटू E। ओके, गुड, ये आ गया। हमें करना क्या था, व्हाट वाज आवर टास्क, आवर टास्क वाज टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस। ओके, हमको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल, करेक्ट, राइट। तो हमने चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाल लिया, अब क्या बाकी था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस V। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो E0 फील्ड है, E0 फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट, करेक्ट, वो उसका इफेक्ट एज इट इज कहाँ पे है, एज इट इज मतलब डाइलेक्ट्रिक छोड़ के, डाइलेक्ट्रिक छोड़ के कितना स्पेस बचता है आपका, इतना स्पेस बचता है, ये स्पेस बचता है, मतलब आई विल से D माइनस टी, राइट। तो वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल डिफरेंस V इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का है वो, इनटू डिस्टेंस D माइनस टी। D माइनस टी क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि E0 एज इट इज विदाउट रिडक्शन, बिना किसी रिडक्शन के, जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वहीं पे वर्क करेगा, राइट, प्लस मतलब दिस इज द स्पेस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बेसिकली दिस इज स्पेस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि हमने, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D था, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T लिया है, तो स्पेस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट, गुड। देन प्लस रिड्यूस्ड फील्ड है ना, ये E इज रिड्यूस्ड फील्ड ना, कहां पे रिडक्शन हुआ, जितने स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन हुआ, हाँ, तो रिड्यूस्ड फील्ड इनटू T, so this is a space of dielectric। okay, good, then if you know this much, if you have understood this much, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया। ओके, तो आई विल जस्ट सिंप्लीफाई दिस, E0 D माइनस टी, हमने E को ऑलरेडी E0 by k लिखा है, E0 by k लिखा है हम लोगों ने, फिर हम लोग इसको E0 को कॉमन निकाल सकते हैं आउटसाइड, तो हमको मिलेगा D माइनस टी
प्लस टी बाई के। ओके, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा E0 इज Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के, ये हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। गुड, राइट। देन व्हाट वी नो इज, हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? बाय द वे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट। गुड, व्हाट वाज चार्ज? अभी हमने, चलो ठीक है, चार्ज को लिख देते हैं Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारे पास? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा आया। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया और A एप्सिलॉन 0 ऊपर चले गया, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। एक्सट्रीमली सिंपल, बन गया इक्वेशन। इसके बाद हम स्पेशल केसेस देखेंगे, बट फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस मच एंड देन वी विल राइट डाउन स्पेशल केसेस। और पहले समझ भी लेते हैं अच्छे से वापस एक बार। इट्स सिंपल, इट्स नथिंग, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, तो द आइडिया इज pretty simple। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स डी डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। एक इंसुलेटेड प्लेट है जिसमें मैंने चार्ज प्लस Q डाला है, दूसरा जो ग्राउंडेड प्लेट है जिसपे चार्ज माइनस Q इंड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द प्लेट P1। ओके, इस प्लेट P1 पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए P2 पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया। अभी तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला नहीं है हमने। विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब था, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जब था, तो कैपेसिटी इज गिवन बाय C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है, राइट, करेक्ट। in absence of dielectric medium between the plates, potential difference is E0 into D, है ना। हमको ये भी पता है कि E0 क्या होता है। E0 is nothing but चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कहाँ से आया? ये भी कल डिराइव किया था। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस। सिग्मा क्या है? सिग्मा ये है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया। ओके, राइट, तो यू हैव दिस मच। अब व्हाट हैपेंड वाज, जब जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट्स के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिया ऑफ थिकनेस T, इन दैट केस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव आ गया, राइट। इसका मतलब देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एंड व्हेनेवर देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नॉट in between the two plates of the capacitor, inside the dielectric, and that EP is given by sigma p, where sigma p is surface charge density of the polarized charges upon epsilon 0, that is given by QP upon A epsilon 0, right। अब तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर what is the resultant net electric field? So net electric field E inside the dielectric medium is external field minus the field due to polarization, and this is equal to E0 by K। ये आपको without any further explanation use करना है। E equal to E0 minus EP, which is equal to E0 by K. This is what you're supposed to use without any further explanation। तो E is equal to E0 by K आ गया आपके पास in short। But what was E0? Q upon A epsilon 0, K, है ना। तो ये मैंने E0 के लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया। गुड, तो मुझे यहां से मिल गया चार्ज। तो चार्ज Q आ गया अपने पास सॉरी फॉर दिस, चार्ज Q आ गया हमारे पास A epsilon 0 K into E। अब
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दिस विल बी ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओरिजिनल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू the charges on the plates of the capacitor, and that will be E0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस वेयर दिस E0 इज एक्टिव. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के उसके बाहर का जो स्पेस है, ये स्पेस, यहाँ पे रिडक्शन हुआ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं हुआ. तो E0 विल बी E0 देयर, वहां पे रिडक्शन नहीं हुआ. तो D माइनस टी जितना स्पेस है वहां पे देर इज नो रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देर इज नो रिडक्शन इन द पोटेंशियल. प्लस प्लस पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इफेक्टिव फील्ड कितना है? E. थिकनेस कितना है डाइलेक्ट्रिक का? T. करेक्ट. तो ये आ गया आपका E0 D माइनस टी प्लस E इज E0 बाई K इंटू टी. तो E0 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के. ये मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस. और E0 क्या है हमारा? Q बाई ए एप्सिलॉन 0 D minus T plus T by K. What is capacitance? Charge for unit potential difference, charge upon V. So charge upon V is Q by A epsilon 0 D minus T plus T by K. तो ये और ये कैंसिल हो गया. तो A epsilon 0 upon D minus T plus T by K is the capacitance when you insert a dielectric of dielectric constant K and thickness T. Okay, so this is what we have to write down over again. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. राइट, गुड. So give me a minute. What I am going to do is I am just going to move this thing little bit. Good. And then we are going to write from here. So we have some space, extra space. Okay, so let us consider a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor with the two plates, each of area A, separated by a distance D. The capacitance of this capacitor is the capacitance of the capacitor is given by, right. So as you know, in this case the capacitance is given by, मैंने आपको बताया था, C0 equal to A epsilon 0 by D. तो C0 हम लोग डिनोट कर रहे हैं जस्ट टू टेल यू दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. करेक्ट, गुड. देन let E0, अभी वो I will be using E0 over here with suffix. Let E0 be the electric field, intensity
between the plates before the introduction of the dielectric slab, then the potential difference between the plates and the potential difference between the plates is given by. So जब तक हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया था, in that case electric field was E0 and the potential difference in that case is given by V0 is equal to E0 into D, where we already know E0 is the electric field between the two plates, and that is given by induced charge on the plates, or the surface charge density of the plates divided by epsilon 0, and surface charge density is charge per unit area epsilon 0. This is what we should know. Okay, right. Then of course, where sigma is surface charge density of the plates, where sigma is surface charge density on the plates of the capacitor. Okay, then now अब ऐसा करेंगे, we will insert a dielectric slab now. Okay, so let a dielectric slab, let a dielectric slab of thickness T, and we are taking T to be less than D. स्पेस बिटवीन प्लेट्स से तो कम ही थिकनेस होगा ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता. बी इंट्रोड्यूस्ड between the plates of the capacitor. The field E0 polarizes the dielectric, inducing charge minus QP. तो ये माइनस QP मैं लिख दूंगा बाद में. माइनस QP on the left side and plus QP on the right side of the dielectric as shown in figure. Right, good. Then these induced charges set up a field, and that field is E of P, that I will write down later, inside the dielectric in the opposite direction of original field E0. The induced field is given by right. So what we have written so far, अब ऐसा है कि हमने अगर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब
इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो जो फील्ड E0 था, ओरिजिनल फील्ड जो था, वो ओरिजिनल फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज कर देगा और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस क्यूपी चार्ज इंड्यूस करेगा, राइट हैंड साइड पे प्लस क्यूपी चार्ज इंड्यूस करेगा। ये जो इंड्यूस चार्जेस है, ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेंगे गिवन बाय ईपी, एंड दैट ईपी इज इक्वल टू induced charge upon epsilon 0 equal to induced charge density is qp upon a epsilon 0, correct, where as we know, since induced surface charge density is qp by a, this is what we know, correct. Then अब रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो the net field E inside the dielectric slab, inside the dielectric slab is E is equal to E0 minus EP, which is equal to E0 by K, right? Since E0 upon E0 minus EP is equal to dielectric constant, that is the definition of dielectric constant. Okay, therefore what we have, E is equal to E0 by K, but what was E0 was Q upon A epsilon 0 K, correct. Therefore what we have is Q is equal to A epsilon 0 K times of E, let us say equation number 1. We haven't given any numbers to equation as of now, yes, right. Okay, so now अभी हमको ये देखना है कि कौन सा फील्ड कहाँ कहाँ एक्टिव है, राइट। सो द फील्ड E0 EP, जो इंड्यूस्ड फील्ड है, एग्जिस्ट्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ T, ओवर अ डिस्टेंस T, है ना, क्योंकि जो EP है वो सिर्फ स्लैब के अंदर ही है, एंड E0 एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब स्लैब के बाहर और प्लेट्स के अंदर, ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस D minus T, okay, right, between the capacitor plates, hence the potential difference between the capacitor plates, capacitor plates is, so what you can write is the field EP and the field E0, okay. So the potential difference V is equal to E0, which is effective for a distance d minus t, plus EP, which is effective for a distance of t, correct, right. But no, sorry, E, net field, we have to talk about net field here, reduced field here.
Okay, right. So this is equal to E0 d minus t d minus t plus E, which is E0 by k into t. Therefore, potential difference V is equal to E0, you can take out common, then you will have d minus t plus t by k, right? Therefore, the capacitance, the capacitance of the capacitor in presence of, or after the introduction of, on the introduction of, I will say better, in presence of or with dielectric slab between the plates is, what is C? Then C is easy, Q by V. Q by V, V is E0 d minus t plus t by k, that is equal to Q. But E0 हमको पता है, E0 is, we have already written, E0 is Q by A upon epsilon 0 d minus t plus t by k, cancel, which is equal to A epsilon 0 upon d minus t plus t by k. So this equation number 2 gives the capacitance of capacitor in presence of dielectric. Okay, so in the next session we are going to discuss about special cases and the last theoretical topic, that is energy stored in a capacitor. So sufficient for today. Let's meet in next session.